हे ऑल वेलकम बैक टू ग्रे लाइफ अगेन एंड आज हमारे साथ जुड़ने जा रही मिस कुंजन गुप्ता. तो बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू लेट मी गिव यू a small introduction for her. And so she basically completed her graduation from IIT Delhi into biochemical engineering and also her masters from the same college in biotechnology. And after that she is actively working with a firm called Move Farm. So that's into the agri-tech domain. तो वहाँ पे शी इज़ वर्किंग एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर एंड शी इज़ वर्किंग वेरी क्लोजली टू बिल्डिंग द product and also with the dairy farmers of India. So that's it from my side, and let's keep rolling. And we'll ask a lot many questions in the coming discussion. So let's get started then. So first of all, very warm welcome to Grey Life Gunjan ji. एंड आई एम श्योर हमारी जैसी पिछली वीडियोस भी व्यूअर्स को इतनी पसंद आई थी एंड वी गॉट अ वेरी गुड फीडबैक. तो इसमें से भी आई एम श्योर दे एबल टू गेट सम सॉलिड टेक अवे. आपकी जर्नी से लोग कुछ समझ पाएंगे, कुछ टेक अवे उनको मिल पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. व्हाट डू यू से? Thank you so much, Hiten, firstly, for calling me on this platform. I have always said, and I've always, shared it with my friends also, ki, there is so much of things that are said and heard about people who cracked the exam, and there is so much of glamorization. But there is this entire tribe of equally competent people, who could not make it to that so-called holy list, and yet are doing something really good in their life and have really picked themselves up. And it's so important to hear their stories also. So I think the initiative that you've started, it's such a beautiful initiative to bring out those people who regained from that sort of a setback and a failure, and are now doing good in their lives. So I think congratulations to you for having built this initiative, and thank you for calling me here. Yeah, thanks a lot again. एक्चुअली द एपिसोड बाय एपिसोड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव. जो भी लोगों से फीडबैक आता है, जो लोग देखते हैं उसको और हमें बताते हैं कि अच्छा इस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है. तो आई थॉट कि प्रीवियस जो स्टोरीज थी वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब लेंथ वाइज जा रही थी. तो आई थॉट कि लेट्स नॉट मेक इट फिक्स फॉर्मेट की जहाँ 4 डेडिकेटेडली पार्ट हो गया और उसको हम अलग अलग लेवल पे जाएंगे. बट आई व्हाट आई थिंक इज कि वी कैन मेक इट मोर अपीलिंग इन द सेंस कि हम उसमें आपकी स्टोरी का वो पर्टिकुलर पार्ट कवर करेंगे जो यूजर्स मतलब उसमें से उनको ज़्यादा से ज़्यादा या रेलेवेंट लगेगा. तो हम भी उसी पार्ट पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे कि उनकी पोस्ट यूपीएससी जर्नी में, और उसमें जैसे आप अभी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में हो तो उसमें कैसे वो जा पाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. तो लेट्स डू start with that, right? Sure. So it would be great if you just start with your brief introduction. though मैंने उनको initially बता दिया है, but it would always better to hear from the horse's mouth. तो आप अपनी brief background या schooling और थोड़ी सी एक जर्नी बता दो अब तक की कैसे रहेगी. Sure. Thanks, Iten. So, I graduated from IIT Delhi back in 2017. मैंने अपना BTech और MTech मेरा dual degree program था, and I did it in biotech, biochemical engineering and biotechnology. So, mostly I was a good student. I had a good grade point average. I had a CGPA of around 9.4. तो पहले मुझे ऐसा लगा कि probably going for a PhD makes more sense for me. और नॉर्मली जब आप अपने ग्रेड्स में अच्छे हो, आपको सब्जेक्ट भी अच्छा पसंद होता हो, एंड बायोटेक अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जो काफ़ी इट्स अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड. सो आई इनिशियली इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ IIT आई फेल्ट दैट probably PhD would make more sense for me. बट टुवर्ड्स दी फाइनल ईयर्स मेरे को एक अच्छा इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला था, अगेन विद अ कोर कंपनी एंड अ स्टार्टअप विच वॉज एक्चुअली बिल्डिंग पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस. तो मैंने उनके साथ काम किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. उन लोगों ने मुझे PPO भी ऑफ़र किया. बट आफ्टर दैट आई मेड अप माई माइंड टू सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. आफ्टर दैट आई गेव 2 attempts to the exam. When that didn't happen for me, after that I pivoted and I moved into the role of product management. Now it's been 2 years that I have been doing product management, and I'm currently working as a senior product manager in agri-tech firm, which is basically called as Move Farm. और हम लोग डेयरी फार्मर्स जो हैं इंडिया के उनके लिए हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम करंटली डूइंग. So you have that IITN wala tag on your shoulder, right? So which is not very usual to have for the aspirants. So why not to go into field specific rather
and just what's that trigger point which made you to start the preparation rather, and not going into, because you had your master's degree also from the similar domain. So अगेन कोई बहुत क्लियर ऐसा देर इज़ नो क्लियर आंसर टू इट. मेरे साथ मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रही थी. सो माई डैड ही इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बेसिकली, एंड ही इज़ करंटली सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन DFCC. शायद कुछ लोगों ने नाम सुना भी हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन. तो बेसिकली ही हैज़ बीन सर्विंग एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर इन इंडियन रेलवेज फॉर मोर देन 30 years नाउ. तो अब क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव शिफ्टेड प्लेसेस टू प्लेसेस. और मैंने पूरा आई मीन व्हेन यू सी योर डैड, आपके डैड का जो काम होता है दैट्स द मोस्ट क्लोजेस्ट दैट यू सी एनीबडीज वर्क, राइट? एंड I've always been inspired by the kind of the entire body of work that he's done all throughout his life, and also the kind of government privileges that come around with it. तो बहुत ही consciously unconsciously मुझे भी I don't know there is any particular event in my life that happened जब मुझे लगा हो कि नहीं यार सब छोड़ के civil services is what I have to do. But वो कहीं ना कहीं consciously unconsciously because of the kind of work and the kind of the entire package that comes with government services जो आता है, वो उसने मुझे शायद कभी trigger किया that maybe giving this exam or becoming or aspiring to become an IAS officer, maybe that's where it got into me and I started preparing for the exam. Also मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबके पेरेंट्स जो ये हम लोगों के ये वाले मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली इफ़ योर फादर और अ मदर इज़ इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, once or twice in your life they will always say कि बेटा एक बारी तो एग्ज़ाम ट्राई कर ही लो, यू नेवर नो, यू माइट जस्ट बिकम. एंड स्पेशली अगर आप स्टडीज़ में थोड़े से अच्छे भी रहे हो, यू गॉट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स, आपके कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो देन तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि यार निकाल ही लोगे तुम भी. तो probably all those things, and then I just felt maybe I should also start preparing for the exam. तो ट्रिगर वहाँ से हुआ. बट ऑफ कोर्स जो सर्विसेज का पूरा स्कोप और इम्पैक्ट है वो तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप और समझते हो सर्विस के बारे में या क्या काम कर सकता है एक सिविल सर्वेंट, वो तो फिर आपको और मोटिवेट करता ही है. बट आई थिंक माई इनिशियल ट्रिगर वॉज माई डैड्स वर्क एंड हिज रोल एंड हिज जॉब. I see, fair enough. So does your parents ever pushed you into that direction कि नहीं बेटा आपको तो करना ही पड़ेगा, मतलब this is the exam you should be more focused about, and you have to give some dedicated number of years for your life, or it was just a self call जहाँ पे आपने खुद ही decide किया कि नहीं मुझे करना चाहिए. So what was it about? यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज में चाहे जब कोई एंटर कर रहा हो चाहे वो एग्ज़िट कर रहा हो, दोनों ही टाइम्स पे इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक. आई मीन व्हेन यू आर ऑल्सो एंटरिंग देन यू आर गोइंग इनटू वेरी अनचार्टेड वाटर्स. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2-3 years एटलीस्ट. पता नहीं है कितने अटेम्प्ट में निकलेगा. एनीवेज इट्स अ लॉन्ग एग्ज़ाम, लॉन्ग जर्नी. So that is there. And also when you're sort of actually deciding to come out of the exam after having given so many years, again that's also an audacious choice to make. And in both the things, ownership तो देखो जो decision maker होता है उसी की होती है, because it's the life of that person is at stake. But if you have your parents support right by your side in helping you make that decision, आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है. थोड़ा सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पेरेंट्स का बहुत हेल्पफुल होता है. तो जब मैं एटलीस्ट व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन, एज आई जस्ट मेंशन्ड राइट, आई हैड अ गुड जॉब एंड अ ल्यूक्रेटिव ऑफर. तो मैंने एक दिन घर आके बोला कि मम्मा पापा आई थिंक आई शुड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. नॉट इवन वंस डिड दे से दैट कि भाई ऑफर अच्छा है, यू माइट जस्ट वांट टू कंसिडर इट. दे वर लाइक कि इफ़ यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम, राइट टाइम है. हर समय जीवन में पढ़ाई भी नहीं होती है. दिस इज़ प्रॉब्ली द राइट टाइम, एंड इफ़ यू फील लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम वी आर टोटली विथ यू, एंड आई मीन गो फॉर इट. तो एट दैट टाइम ऑल्सो दे सपोर्टेड मी. जब 2-2.5 साल हो गए एंड आई हैड गिवन माई एवरीथिंग इनटू द एग्ज़ाम, उसके बाद मेरे को तो उस समय फिर भी एक बारी को कहीं ना कहीं आई वाज गेटिंग दैट थॉट कि मे बी एक अटैम्प्ट और दे लेते हैं, शायद अगली बार हो जाएगा. बट माई पेरेंट्स हैड सीन माई जर्नी एंड माई मॉम पुट हर फुट डाउन and she was like, no, you gave it all, whatever you could. Now there is life beyond the exam also. Just come out of it, and you will be able to make a good career out of something else also. So she was like my pillar, and she said कि look beyond and you will get something else. So that's when मतलब जो decision मैं खुद से शायद उस समय नहीं ले पा रही थी, I think my mom and my dad really supported me with that.
नहीं, ये चीज़ मुझे काफ़ी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लगी कि व्हेन आई वाज रीडिंग योर स्टोरी एंड योर ऑल द आंसर्स यू हैव सबमिटेड, तो क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स पुश करते हैं कि अच्छा आप एक और अटेम्प्ट दे दो बेटा, मतलब हो जाएगा इस पर, आप यू हैव क्लियर द प्रीलिम, तो नेक्स्ट टाइम हु नोज यू माइट एंड अप इन द इंटरव्यू। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सही लगा कि आपके मतलब मॉम ने इस एंगल में सपोर्ट किया और बोला कि चलो इट्स नाउ इट्स टाइम यू फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ योर करियर। Yes. तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि जनरली लोगों को 3-4 अटेम्प्ट्स ये रियलाइज होने में ही लग जाते हैं, बट यू वर वेरी फॉर्चुनेट इन दैट केस। एब्सोल्युटली आई थिंक। और आज भी जब मैं व्हेन आई लुक एट हाइंडसाइट राइट, इतना कुछ, एक तो देखो लास्ट के 2-3 सालों में वैसे ही कोविड की वजह से ये एग्जाम्स इतना फ्लक्चुएट हुए, एंड पीपल हैव बीन सिटिंग इन द एग्जाम फॉर सो लॉन्ग। आई मीन आई नो इट्स बीन अ वेरी टीडियस जर्नी फॉर पीपल, एंड आई ऑलवेज थैंक मॉम कि मम्मा आपने सही टाइम पे मुझे सही ज्ञान दे के निकाल दिया, अदरवाइज तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। ओके, सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट कि आपका ब्रीफ हमने जान लिया एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू गेट इनटू द प्रिपरेशन मोड। तो थोड़ा सा बता दो कि आपने कौन कौन से अटेम्प्ट कब दिए और उसका आउटकम क्या रहा। राइट। तो यार आई मीन मैंने अपनी तैयारी ही स्टार्ट की आफ्टर ग्रेजुएशन, सो आई ग्रेजुएटेड इन 2017। आफ्टर दैट डिड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गिविंग द एग्जाम, सो आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 फुल ईयर। और उसके बाद मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। एंड दैट टाइम आई फेल्ट यार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, अभी तो मेंस के लिए भी पढ़ लिया था, देयर वाज सो मच स्टडीज डन, सो आई डेफिनेटली टेकिंग द सेकंड अटेम्प्ट वाज एन ऑब्वियस चॉइस। फिर मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्रैक, बट मेरा मेंस नहीं हुआ था। मेंस आई थिंक I was less by 2-3 marks again for clearing the mains cutoff, but so that second attempt mains didn't happen. After that, I sort of decided that I don't want to go with further attempts for this exam. So that I mean, so basically I gave 2 attempts in the exam. ओके, दैट्स नाइस। सेकंड में आपने मतलब मेंस में भी यू वर लाइक वेरी क्लोज इनफ, सो थोड़ा Yeah. ऐसा नहीं लगा कि चलो लेट्स थिंक अबाउट द अदर करियर बट साथ में इसको भी प्रिपेयर करते जाते हैं, तो वैसा वाला कभी कोई थॉट आया था कि साथ में मतलब करो? इसमें एक्चुअली सेकेंड अटेम्प्ट के बाद ना मेरे को एक चीज़ ये लगी थी कि मतलब वॉट एवर आई कुड डू और वॉट एवर आई हैड थॉट कि मुझे यार इन इन चीज़ों की तैयारी करनी है, आई ऑलमोस्ट डिड एवरीथिंग। मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे, आई वॉज आई कुड कम्प्लीट ऑल माई पेपर्स। लोगों के पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं बिकॉज GS पेपर्स आर नॉर्मली वेरी लेंथी। आई कुड कम्प्लीट ऑल माई पेपर्स वेंट रियली वेल, एंड आई वॉज वेरी होपफुल फॉर द रिजल्ट। बट उसके बाद जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मार्क्स आए, आई मीन इट वॉज़ वेरी डिल्यूजनल फॉर मी। जो मुझे लगा था मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं, उनमें मेरे स्कोर्स एवरेज थे, एंड द वंस दैट आई रियली फेल्ट कि यार ठीक ठीक हुआ है, उसमें आई हैड डन गुड। आई मीन देयर द स्कोर्स वर नाइस। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम, एंड थोड़ा सा ना देखो ट्रांसपेरेंसी की कमी तो है। अब इतना चीज़ें आपके एंड ऑफ द डे पे मार्क्स आ जाती हैं, एंड आफ्टर दैट यू आर वंडरिंग नाउ वेयर इज इट दैट आई शुड इम्प्रूव ऑन। According to me, I did everything that I could in my best capabilities to sort of prepare for the exam and do my best, and I delivered my best on that day. अब उसके बाद मुझे कोई चीज़ पे भी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ था कि यार कोई ये और मैं कर जाती तो I would have probably done better. तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई रियली डिड नॉट फील लाइक टेकिंग अ थर्ड अटैम्प्ट, बिकॉज आई फेल्ट कि मैं इम्प्रूव करूँ तो करूँ कहाँ पे, मुझे पता ही नहीं है। अब आई वुड हैव डन मे बी अ थर्ड अटैम्प्ट, कुछ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स आ जाती, मे बी क्रैक हो भी जाता, बट देन इट वुड हैव बीन लाइक ट्राइंग योर लक फॉर another 1.5 year without knowing exactly what is it that I want to improve on, what is it that I have to focus on. That was not making sense to me. I mean, normally it's said, right, कि you can't keep wasting your 20s for revising the same book again and again, not knowing what are you doing, where is your life sort of heading to. तो उस समय मुझे it was just not making any sense to me कि I will sit for the exam again for maybe for trying my luck and maybe doing the same thing again, और हो सकता है इस बार हो जाए। वो यही होता अगर मैं एक अटेम्प्ट और भी बैठ जाती, शायद निकल भी जाता, बट that was not making sense to me. नहीं, दैट्स अ रियली नाइस कॉल। क्योंकि जनरली लोगों को उल्टा लगता है कि हाँ ये अटेम्प्ट दे दिया है तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला मतलब इम्प्रूव हो सकता है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये इम्प्रूव करेंगे, बट ये माइंड की क्लैरिटी होना वो भी, और वो भी दैट टू फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में क्लैरिटी होना बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि देखो ना, आप अब लोग बोलते हैं एसए में कम आए हैं, चलो अगली बार एसए में ज़्यादा आ जाएंगे, या अब इसमें कम आए हैं उसमें ऐसा, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, जबकि हो सकता है आपने सब कुछ करा और फिर मतलब आई मीन द पेपर्स एंड द वे द मार्क्स आर सॉर्ट ऑफ शोन टू यू, यू डोंट नो आई मीन कहाँ पे आपके कम रह गए, किस क्वेश्चन में कम रह गए, कि वॉट इज़ इट दैट यू शुड इम्प्रूव ऑन। मुझे आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे डायग्राम ज़्यादा डालने चाहिए, मुझे पॉइंटर में ज़्यादा लिखना चाहिए, वॉट डिड द इन्विजिलेटर लाइक, वॉट डिड ही नॉट लाइक, यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी ऑन व्हाट्सो एवर। यू जस्ट ट्राइंग आउट योर लक, फ्लूक आफ्टर फ्लूक किया, तुक्के में जिस बारी लग जाएगा उस बारी निकल जाएंगे, वो वैसा हो जाता है कभी कभी। तो दैट शुड नॉट हैपन। या तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी वाला भी इशू मतलब निकल आ रहा है इस कॉन्वर्जेशन से कि हैड एब्सोल्युटली। दे बीन लाइक टोटली ट्रांसपेरेंट अबाउट द प्रोसेस कि हर एक लेवल पे आपको दिखाया जाए कि ये आपकी मार्कशीट्स मतलब क्या किस बेस पे ये नंबरिंग हुई है, तो आई थिंक लोग के लिए बहुत आसानी रहेगी आगे का मूव लेने की। आगे का नेक्स्ट मूव लेने के लिए आई रियली फील दैट, बिकॉज आप ये देखो, आज के टाइम में जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, चाहे आईआईटी का हो चाहे नीट का हो, इन ऑल दीज पेपर्स यू नो दे गिव यू योर स्कैंड the scanned sheet wherein you fill your bubbles and all the options, right? Again, all this improves your कि हाँ जो मैंने मार्क किया था उस समय अपने शीट में वही आंसर रिकॉर्ड हुआ है, एंड there hasn't been anything wrong that has happened to me. I mean, years are sort of at stake one after the other. तो मतलब वो यहाँ पर हम 8-8 9 एग्ज़ाम्स देते हैं, इतनी वेरिएबिलिटी आ जाती है, यू डोंट नो व्हाट, एक पेपर अच्छा हो गया, एक पेपर गड़बड़ हो गया, एंड यू डोंट मेक इट, योर एंटायर 1.5 year हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। सो वो कहीं ना कहीं, आई नो सिस्टम की अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्क्रीनिंग एट्सेट्रा दैट आर सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व। तो दैट्स वाई आई फील द पेपर नीड्स टू इवॉल्व, इट्स हाई टाइम द पेपर नीड्स एवोल्यूशन। प्रीलिम के मार्क्स के लिए भी वी हैव टू वेट फॉर लाइक द रिजल्ट कम आउट, राइट? तो जो फाइनलिस्ट आया था उसके बाद ये रिजल्ट आता है, तो पता नहीं होता अब नाउ डे आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर वी आर सीइंग कि सी सेट इज ऑल्सो नॉट दैट इजी विच वी यूज टू से लॉन्ग एब्सोल्युटली, या बैक। तो अभी लोग या जीएस क्लियर कर दे रहे हैं बट सी सेट में कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं, तो वो नहीं रह भी समझ जाते नहीं हैं। आता है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग हो हमारे पास तो शायद इट विल हेल्प अ लॉट टू द एस्पायरेंट कि हाँ क्या कौन सा मूव लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी तो ये होता है, जिस बंदे का पेपर क्लियर हो गया उसके आंसर शीट्स वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले डाल देते हैं, एंड दैट बिकम्स लाइक द होली हाँ वे ग्रेट। ऑफ राइटिंग द आंसर, एंड एवरीवन इज कॉपिंग दैट ओनली। सो दैट इज हाउ वी आर सॉर्ट ऑफ वर्किंग ऑन दिस एग्जाम। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उस समय लगा कि अब नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। सो राइट राइट। लेट्स मेक अ डिफरेंट मूव। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कि हम स्टोरी स्पेसिफिक ज़्यादा बात करेंगे, तो उसमें मैं पूछूंगा कि आपको मतलब राइट आफ्टर जो लोग यूपीएससी जर्नी से बाहर आते हैं तो वो लोग दे स्टार्टेड थिंक अबाउट कि कोई अलाइड एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, स्टेट पीसीएस में होते हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट वेरी यूजुअल थिंग कि जब जो विच कम्स इन टू द माइंड कि अच्छा चलो जीएस वगैरह पेपर दे दिए अब उसके बाहर आए कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। तो वो चीज़ कैसे मतलब आपने फिगर आउट किया कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए एंड दैट वुड बी बेटर करियर चॉइस फॉर मी एज पर से। तो ये नैरो डाउनिंग में अब कैसे आए, और अगर किसी को आना हो उस पर भी हम बात करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट टेक दिस क्वेश्चन कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे चूज़ किया आपने। Right. Yeah, honestly, when I sort of was making that call of transitioning, कि मेरे को जब था कि भाई अब सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देना, मतलब थर्ड अटेम्प्ट नहीं देना है, एंड अब क्या करना है लाइफ के साथ। तो एक तो क्या होता है, ये फियर अपने आप में इतना बड़ा होता है विच सॉर्ट ऑफ प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द एग्जाम ओनली। लोग छोड़ना चाहते हैं प्रेपरेशन, नॉट दैट पीपल, आई हैड सम क्लैरिटी विच अदर्स डोंट हैव। जब नहीं हो रहा है, एवरीवन वांट्स टू कम आउट ऑफ द एग्जाम, but essentially what prohibits them from coming out of that trap is basically that fear of what will we do next. For example, if not this, then what? Anyways, we've spent so much time in the exam and there is no second option that we have. हम लोगों से भी इतना डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं, और स्पेशली इस एग्ज़ाम के टाइम पे तो ऐसा भी होता है कि you're so much cut off from social media and everything else that you feel that the entire world has progressed. You are only at that spot where you were like 2 years 3 years back, and everyone else is doing really good in their life. So ek to all those fears and apprehensions prevent you from looking out for other opportunities, or thinking of looking at other plans or other career opportunities. But having said that, I mean, firstly, that initial thought or that initial fear
of transitioning and moving, and taking another career move, पहले तो उस चीज़ को थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ओवरकम करना होगा. अगेन सिर्फ एक माइंड सेट शिफ्ट है. अगर थोड़ा सा लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेंगे तो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने आप दिखने लगेंगी. बट जहाँ तक आई बात प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, इनिशियली व्हेन आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड आउट आई डिड नॉट नो अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पता था क्या है, कैसे होता है. एक चीज़ बस मुझे जो ये पता थी वो ये पता थी कि द रीज़न आई वॉज डूइंग सिविल सर्विसेज वाज समथिंग जो कोर आई थिंक सबका होता है, और सबका आई थिंक स्टैंडर्ड इंटरव्यू आंसर भी होता है, दैट वी वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट एट स्केल, वी वांट टू सर्व द कंट्री एंड वी वांट टू रियली वर्क फॉर इंडिया एंड क्रिएट इम्पैक्ट फॉर इंडिया. आई थिंक दैट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग दैट प्रॉब्ली नॉट जस्ट अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट बट एनी वन हैज़, राइट. कि हम जो भी काम कर रहे हो कुछ अच्छा निकले उससे, किसी की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आए, कुछ अच्छा इम्पैक्ट हो. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नॉर्मल पॉजिटिव फीलिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़. उसी के साथ साथ थोड़ा सा मुझे ये लगा था प्रोडक्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसी फील्ड है which enables creating that impact again at a very large scale through tech. कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस के साथ आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं विच क्रिएट्स इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. सो फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ ऊबर, थिंक ऑफ फेसबुक, थिंक ऑफ एनी ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव लिटरली चेंज द वे वी सॉर्ट ऑफ इंटरेक्ट टुडे. चाहे सोशल मीडिया हो, थिंक ऑफ इफ ऊबर और ओला इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ, आई मीन प्रैक्टिकली आप सडनली एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं कि मैं जाऊँ कैसे उस जगह पर. तो these products have really changed the way people have changed people's lives in a way. तो मुझे लगा कि probably अगर उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से शायद I might be able to create some impact or I might be able to do some good work. और जैसे कि मैंने पहले बताया हमारी जो कंपनी है वो भी एक बहुत ही नोबल सेक्टर में है. वी आर वर्किंग फॉर फार्मर्स, वी आर वर्किंग विद फार्मर्स. तो व्हेन आई वाज ट्रांजिशनिंग मुझे ऐसा लगा कि यार जिन लोगों के साथ शायद मैं एक एज एन IAS ऑफिसर करती, आज मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ जो एक्चुअली इनकी कोर प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए मे बी आई विल बी डूइंग समथिंग गुड, क्रिएटिंग थ्रू डिजिटल सर्विसेज, थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस. So that is how I sort of made a choice of moving from one sector to the other sector, and that's how and why I basically came into product management. Okay, but was there someone who lead towards that thing कि अच्छा Gunjan you can try on this thing because you might like this field as well. तो किसी ने बताया था आपको कि ये वाला ट्रांजिशन पीरियड में मतलब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, और इट वाज ऑलरेडी देयर बैक ऑफ योर माइंड बिफोर? नहीं यार, आई मीन कोई बैक ऑफ द माइंड पे ऑनेस्टली कुछ नहीं होता है उस टाइम पे. तो जब निकल के आते हैं एग्ज़ाम के बाहर तो बैक ऑफ द माइंड पे तो ये होता है अब करना क्या है, जॉब मिल जाए. ऑनेस्टली उस टाइम पे इतना कुछ नहीं सोच रहा होता है. मैंने इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल सॉर्ट ऑफ रिलेट टू मी विद दिस ऑल्सो. व्हेन आई वाज सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग आई ऑल्सो थॉट ऑफ PhD. मैंने MBA का भी सोचा पहले तो, बट वो यही होता है कि आप इतनी पढ़ाई के बाद निकल के आ रहे होते हो, फिर अब ये अगेन लॉन्ग टर्म बेट्स लेना MBA की, चाहे पर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लाइक कैट वगैरह देने के लिए या फिर PhD के लिए. इनफैक्ट कैट की तो मैंने तैयारी भी थोड़ी शुरू कर दी थी, बट देन essentially these are long term bets. आप फिर से 3-4 साल के लिए अपने आप को वापस पढ़ाई में डाल रहे हो. एंड एट दैट टाइम mentally I was not sort of ready for this. उस समय मुझे लग रहा था कि यार मुझे कोई और प्रोएक्टिव हैंड्स ऑन रोल लेना है, एंड प्रॉब्ली देन आई कैन थिंक ऑफ दीज लॉन्गर टर्म थिंग्स इफ़ आई वांट टू डू इन फ्यूचर. बट मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता कैसे चला और वो कैसे चला, मैं बहुत ज़्यादा वन थिंग दैट आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड डूइंग अ लॉट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम सिविल सर्विसेज इज आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. तो मुझे लिंक्डइन पे काफ़ी पता चलने लगा कि व्हाट आर द रोल्स दैट आर वेरी गुड और अपकमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल्स, एंड फिर वहाँ से मुझे पता चलने लगा कि अच्छा किस रोल में क्या काम होता है, मेरे थोड़े से इंटरेस्ट किस में या इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा जा रहा है. एंड देन आई सॉर्ट ऑफ ट्राइड अप्लाइंग इन दोज रोल्स मोर. Okay, so you were proactively searching over the social media or like over the internet, right? So that's great. और एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे you had that IITN वाला tag with you, and so biotech की डिग्री यहाँ पे कहीं काम में आ रही है in your current role first? यार नहीं, आई मीन नो,
एंड आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, करते हम कुछ और हैं और फिर पढ़ते कुछ और हैं और फिर करते कुछ और हैं. तो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली कोर बायोटेक का मेरी रोल में अभी कोई यूज़ नहीं है, बट यू नो इंजीनियरिंग एंड आईआईटी अपने आप में ना एक इतना अच्छा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है आपको वेयर यू अट्यून योर माइंड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो आफ्टर दैट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट्स गिवन टू यू, आप हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. बट या कोर DNA जेनेटिक्स इंजीनियरिंग विच इज़ पार्ट ऑफ माई बायोटेक करिकुलम, आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दैट राइट नाउ. So, okay, so that leads to the another question कि अगर कोई और है some other aspirant who is from mainly arts or commerce graduate, तो क्या वो भी इसी तरह से उस जॉब में लैंड कर सकता है जिस तरीके से आपने किया? और मतलब was there any added benefit for you to have to pass out from the prestigious university? तो कोई अगर नॉर्मल कॉलेज से भी कोई पास आउट कर, द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ कि अगर कोई और भी है लाइक ऑन दैट पाथ कि वो भी अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहता है चाहती है, तो क्या वो भी उसके पास भी उतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो गए जितने आपके पास थे? श्योर. तो यार इसमें ऐसा है कि फर्स्टली आई मीन IIT का टैग डेफिनेटली हेल्प्स. आई एम नॉट गोइंग टू इन एनी वे से दैट IIT coming from an IIT background with good grade point did not help me. Of course it definitely helps, and that's why I will tell people ki if you are already in your colleges and schools, don't waste your time, work properly, अपने grades पे ध्यान दो, because I mean essentially it will definitely help you in future also. So that is number one. But again, not having an IIT degree also is in no way going to stop you from achieving what you want to achieve. And especially with a role like product management, I've so many people and so many colleagues who are not, number one, not from IIT, number two, they are not engineers also. Product management अपने आप में एक ऐसा role है where people from very different walks of life are coming up, very diverse. There are designers who are walking into this role, there are people from arts, commerce background, etc. I mean engineers, non-engineers, they're all coming. Essentially it's a role about problem solving, it's about thinking, it's about loving your product, trying to create impact in the lives of people. So basically normally it's said that product managers work at the intersection of business, design and tech. So it's more like a generalist role initially. तो you're learning a lot of new things, and धीरे धीरे फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हो तो you become more specialized into a particular industry or a particular sector or a role. But yes, I mean to answer your question, there is no strict rule कि अगर आप IIT के हो तभी आपका होगा, अगर आप एक इंजीनियर हो तभी आपका होगा. It's a very open field. So this is very good point coming out of this discussion, right? कि कोई भी बैकग्राउंड से होगा, they can also religiously try for that thing and they can also land up in their first job as a product manager. So Sure. yeah, so that's a great input coming out of. So अभी आपका प्रेजेंट स्टेज को देखा जाए and like while summing up it in a holistic way, तो was it worth all the effort you have put in civil services preparation? तो वो 2 साल भी आपने उसमें जो डेडिकेटेडली इन्वेस्ट किए, तो was it worth it? Absolutely. I think मतलब वही वाली बात हो जाती है ना, कोई पूछे कि if you had a time turner and if you could go back and sort of make that choice again, I think I would always go back and make that choice. Nice. मतलब आई थिंक जैसे कि हमेशा बोला जाता है ना, फेलियर्स टीच यू मच मोर देन सक्सेस कैन एवर टीच यू, राइट? फ्रॉम अ पर्सनल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, शायद हो सकता है अगर मैं कॉलेज के जिस बाद अगर ट्राई करती ना, आई वुड प्रोबेबली नॉट गो इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. मैं और किसी रोल को ट्राई करती, बट इवेंचुअली दिस इज हाउ इट हैड टू हैपन. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक पर्सनली मेरे साथ जो सिविल सर्विसेज के बाद हुआ है वो ये है कि एक अलग लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी आती है एक इंडिविजुअल में. when you were something really good, और फिर आप you see some setback, and after that the way you perceive success, the way you perceive world, the way you perceive different career options also changes a lot. तो मेरे साथ तो वो जर्नी मेरे को लगता है कि दैट सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ जो एक इंसान के अंदर गहराई आती है ना. आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, और मैं जब उन लोगों से बात करती हूँ वर्सेस पीपल हु आर वेरी फ्रेश, पीपल हु जस्ट डूइंग जॉब आफ्टर द अदर, आप दोनों लोगों के जो बातें हैं, जो दोनों लोगों की गहराई है ना, उनमें मेरे को हमेशा बहुत फर्क लगता है. एंड आई रियली फील पीपल एक्सपीरियंसेस टीच यू अ लॉट. एंड
एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. इतना कुछ सीखने को और पढ़ने को मिलता है, हालांकि ज़्यादा उसको 3 साल 4 साल पढ़ने का भी फायदा नहीं हाँ हाँ. है, बट एटलीस्ट फर्स्ट 1-2 साल में आपको इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ती है जो शायद नॉर्मली आप नहीं पढ़ोगे. हर फील्ड के बारे में, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, pick up anything. I think every subject is so beautiful, and I think you get a chance to read all of that. So I think taking a bold risk is always advisable. It grows you individually, it grows you career wise also. So I would definitely take that choice again if I had to. That's really nice. मैं तो ये सोचता हूँ कि इट शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम सारे फील्ड्स में, वेदर इट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सब में जनरल स्टडीज मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए फर्स्ट ईयर में, ताकि विच यू कैन फिगर इट आउट वेरी अर्ली इन योर career path. Okay, so Right. having said that and talked about this thing, what is the moral of the story here? If there is, I have to ask Gunjan, please tell us ki koi key takeaway for the aspirants who are into this preparation mode now, or who are actively thinking about to change their career now into the another domain. So what's the fresh and key takeaway here? राइट. सबसे पहले तो आई थिंक पीपल हु वांट टू सॉर्ट ऑफ स्विच, नंबर वन इज़ तो मेक दैट चॉइस. आप जो अभी तक डर रहे हो कि आगे क्या होगा, सबसे पहले तो उस डर से बाहर निकलो, अपने माइंडसेट को एक पॉजिटिव टोन पे लेके आओ. आगे भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस हैं. द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट की और कुछ नहीं है आगे सिविल सर्विसेज के. नंबर वन इज़ दैट. Number two, with respect to at least for people who are thinking of transitioning from civil services preparation to product management, today there are really good options available जिससे आप shift कर सकते हो आप product management में. I mean, just to lay down 2-3 good options that are out there. One thing is there are a lot of good courses that are available today जो कि आपको upskill भी करते हैं product management को लेकर, and at the same time they help you with placements also. So some programs, some good cohort based programs that are there. So for example, Upraised, there is Next Leap, programs like PM School, etc. They have some really good fellowships जिससे आप सीख सकते हैं. You do not need any background. You will like the subject and then you will want to do it more. एंड इनिशियली शुरू में डोंट थिंक यार मुझे तो पहले दिन ही अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जाना है. स्टार्ट विद अर्ली स्टेज कंपनीज, लर्न योर स्टफ, गेट बैक दैट कॉन्फिडेंस, एंड आफ्टर दैट मेक योर मूव टू अ बिग कंपनी. आई मीन इट विल ऑल कम. थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है पूरी जर्नी में. यू विल गेट वेयर यू वांट टू गेट. हाँ, तो अभी एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है गुंजन यहाँ पे, कि अभी people are actually opening up and coming to the open forum. Even YouTube, that this story would be out after 10 to 15 days, and people would be learning something from your stories, and even they have all rights to judge, right, कि जो भी उसमें से जो उनको मतलब मिल रहा है आउटकम. तो बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने जैसे यू शॉन दैट ब्रेवरी की come out openly and speaking about your story, speaking about your life. but हम जनरली देखते हैं लिंक्डइन पे भी कि काफ़ी लोग या आई थिंक हितेन, मुझे इसमें क्या लगता है ना, आजकल हमारा ट्रेंड और माइंडसेट ऐसा हो गया दैट वी जस्ट वांट टू शो द गुड पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. आई मीन, अगर आप इंस्टाग्राम भी देखो, एवरीवन इज गोइंग टू पुट ओनली द बेस्ट पिक्चर्स ऑफ देयर लाइफ. दे आर नॉट गोइंग टू पुट पिक्चर्स फाइटिंग और द डे व्हेन दे वर नॉट लुकिंग गुड, राइट? But life is not like that. Every day it's not like that. There are good days, there are bad days, and probably the bad days are sometimes more than the good days, right? तो सिमिलरली आपके लाइफ के जो साल आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की, वेयर यू लिटरली डिवोटेड ऑल ईच एंड एवरी मोमेंट टूवर्ड्स थिंकिंग अबाउट दैट वन ड्रीम, अबाउट दैट वन गोल. आप सुबह शाम रात खाते समय पीते समय एवरी टाइम यू वर थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग. probably not any other phase of your life would you work so hard as you'd sort of do in this exam, and you are simply hiding it away, trying to put layers of I don't know, freelancing work or whatever. You might be doing all of that, that's okay, but why do we have to shy about a failure? You tried something, you didn't achieve it, and it's absolutely okay. आई मीन, आजकल ना हम लोग इतना ग्लैमराइज सक्सेस को कर देते हैं, बट फेलियर्स आर अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. दैट्स लाइक अ कोट जो हम हमेशा पढ़ते हैं, बट वी स्टिल नॉट इंटरनलाइज्ड इट.
और अब ऐसे तो यार एंटरप्रेन्योरशिप भी है। अब हर कोई बंदा अगर फाउंडर यही सोच के करे कि आई एम नॉट गोइंग टू सॉर्ट ऑफ आई विल, मैं तो बन ही जाऊंगा अगला कुणाल शाह, आई एम द नेक्स्ट कुणाल शाह, और आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट जेफ बेजोस। इफ एवरीवन विल नॉट बी दैट, बट दैट शुडंट बी अ रीज़न फॉर यू टू नॉट डू इट ओनली, राइट? और फिर अगर नहीं हुआ तो क्या आप जीवन के 8 साल 10 साल आप उसको बोलोगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं? विल यू जस्ट कीप हाइडिंग इट? So I think those scars are the most beautiful scars, and they kind of prepare you for future. So they need to be sort of shown, discussed, and if there is something more substantial for other people to learn about it, people should talk about it. I don't know what's there to hide and shy about it. I really agree to your this statement, but कहीं ना कहीं do you think कि society भी इसके लिए मतलब I won't say responsible, but कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है? बिकॉज द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू द डिस्कशन, उसमें कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ही वाज शेयरिंग हिज स्टोरी देयर, and he was saying that he went into the social gathering out of he came out of that social UPSC preparation, and then he get into software development. He said ki he was there, he's earning very well into the 30% of tax slab, and he was there, but nobody was recognizing him. And at the same time some other guy came in, and he just recently cleared that PO exam of bank. तो बैंक PO का एग्जाम उसने क्लियर किया था, and some suddenly like people आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, यार आप तुमने सही किया, अभी तो मतलब मैरिज भी आसानी से हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट जॉब ये वो वगैरह. तो वो लगे आई वाज फीलिंग दैट आई वाज नॉन एग्जिस्टेंशियल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. तो आई That's थिंक true. That's वो या व्हाट वुड यू से ऑन दैट? तो दैट्स वेरी ट्रू। आई मीन थोड़ा ना हमारे देश में क्रेज तो है ही बहुत ज्यादा, इसमें देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। यू आई मीन रिसेंटली आई थिंक आई शेयर्ड अ पोस्ट ऑन इट आल्सो, यू कैन बी अ टॉप शॉट, आप खूब पैकेज कमा रहे होगे, आप बहुत अच्छी कंपनी में होगे, आधे टाइम आपके पेरेंट्स ने और सम अंकल एंड आंटीज इन योर नेटवर्क वुड नॉट हैव इवन हर्ड अबाउट दैट कंपनी, पर उनको ये पता होगा अच्छा गवर्नमेंट का ये एग्जाम है, अच्छा आप कलेक्टर बन गए हो। तो इस चीज को इतना सेलिब्रेट किया जाता है, इन सर्विसेज को इतना ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि everyone gets automatically drawn to it, because social recognition is a very innate human psychology में इतना embedded है, you want that recognition, right? तो जो कि थोड़ा सोसाइटी लेवल पे हमें चेंज करना है, एज आई मेंशन्ड बिफोर आल्सो कि एवरी प्रोफेशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि अगर कल को सारे बिजनेसमैन बोल दे हम तो बिजनेस नहीं करेंगे और सब सिर्फ और सिर्फ आईएएस करेंगे, पूरी इकोनॉमी ठप बैठ जाएगी, राइट? तो एवरी स्टेक होल्डर इज इम्पोर्टेंट, और हमें हर सर्विस को, हर बिजनेस को, हर प्रोफेशन को वो इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। So of course there's a lot to change in the society around that also, the social perception of services also, and if you talk to a lot of civil servants for that matter, वो लोग अगर आप उनकी स्टोरी सुनो तो वो आपको बताएंगे कि एवरीथिंग इज नॉट सो ग्लैमरस जितनी दिखाई जाती है। आप अंदर लोगों से बात करो, बहुत परेशान हैं ऑफिसर्स, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव टू डील ऑन अ डे टू डे बेसिस, वो सिर्फ वही जानते हैं, हमें दूर से उनकी कहानियां पता भी नहीं है। So, grass always seems greener on the other side वाली। And the irony is that you and me on the other side, we can always come out open forum ki we can talk about our profession, we can talk about your journey, but for them that is also not the choice, right? They can't come here and say they died in the rules, they are absolutely so इस वजह से जो चीज हमारे को लग रही है परसेप्शन से कि यार बहुत अच्छी होगी, आपको नहीं पता है कि कितनी अच्छी एक्चुअली है, उसकी असली सच्चाई क्या है, वो जब अंदर जाओगे तभी पता चलेगा। So at the end, would you like to live for yourself or for the society? So you have to decide on that. Absolutely, because you can't give your happiness ka remote control to all the uncles and aunties, because she will appreciate, that's why I will live my life like that. You can't do that, right? Right. That's true, because आप जो कर रहे हो they won't understand, because the whole generation is there in between, generation gap जो आ जाता है। यार समझाना भी क्यों है, सबको समझाना भी क्यों है? At the end of the day you own your life, you want to live it the way you want to, so I think just be happy the way you are living it, अपने terms and conditions पे जियो, बाकी तो यार कहने वाले बहुत लोग मिली। And be brave कि आपने वो guts दिखाया जो 99% जनता लेने से डरती है। You have shown that courage to put your career path to hold for like 1 or 2 years, वहाँ पे आप अच्छा अर्न कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो, बट आपने वो ब्रेवरी दिखाई है and you started preparing for that. अगर नहीं वर्कआउट हुआ that's okay, that's like let's accept that thing as a fact.
and then honestly I feel that it's always better to fail than regret throughout Yeah, your life. exactly. एक बार फेल हो जाओ वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जीवन में फिर वही बात हो जाती है कि 50 साल बाद रिग्रेट करोगे ना, हाँ, काश एक बार दे लिया दे होता. दिया I होता। mean the typical Three Idiots dialogue, बाहर गाड़ी खड़ी गाड़ी थी and खड़ी you थी। didn't do it. तो एक बार कर लो, नहीं होगा वो कोई बात नहीं है, बट वो रिग्रेट में जीना ना all हाँ, throughout the life, that एटलीस्ट is यू very वॉन्ट बी painful. चीटिंग टू योर सेल्फ कि यार मतलब मैं Yeah, कर सकता था या कर सकती थी, जो भी है। yeah. बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। नहीं हुआ ठीक है, आपका मतलब वर्क नहीं किया ठीक है, बट देर आर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शंस आउट देयर। Options. एंड अभी सीरियसली मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम पे पीपल आर रियली शेयरिंग देयर स्टोरीज, एंड देर आर स्टार्टअप्स ऑल्सो इन द सिमिलर डोमेन की उनको जो ट्रांजिशन फेज में जो हेल्प किया जाए। एंड कहीं ना कहीं हम लोग भी ये कन्वर्सेशन करके उसमें थोड़ा सा एड ऑन दे रहे हैं अपनी साइड से कि आप देखो, आप गुंजन की भी स्टोरी सुनो, उसने भी ये किया, एंड इफ़ यू वांट यू कैन लर्न इनटू फ्रॉम हर स्टोरी एंड यू कैन ट्राई आउट दैट थिंग. So Sure. that would be really helpful. Okay, so I'll be coming to, we are at the end of the discussion now. So before we end the discussion, I would like to ask you, is there any feedback you would like to share for Grey Life channel, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, या फिर ओवरऑल आपका कैसा रहा अभी इस चैनल के साथ का, एंड यू मस्ट हैव सीन अदर स्टोरीज एज वेल, तो एनी फीडबैक यू वुड लाइक टू शेयर? No, I think as I mentioned before, also the initiative and the work that Grey Life as a channel is, I think, doing is really beautiful. ये बहुत यार बहुत मोटिवेशन की और बहुत ही ना पॉजिटिविटी की कमी है आज के टाइम में, और लोगों को अगर हम वो इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू या और लोगों की स्टोरीज सुन के, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स ईयर आफ्टर ईयर, और इतना ज़्यादा लोगों के अंदर डिप्रेशन है, इतना मेंटल हेल्थ का इशू है आज के टाइम में. इफ़ पीपल कैन गेट सम मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आउट ऑफ दीज वीडियोज़, आई थिंक आवर जॉब विल बी रियली डन. So just continue doing the initiative is what I can sort of say, and I think really all the very best to you, and kudos to you and your team. Yeah, thank you, thanks a lot for that. And yeah, एक चीज़ यहाँ पे और भी इंक्लूड कर देते हैं जो we were discussing before over the call, कि by doing this discussion and all, no way we are discouraging any aspirant out there कि आप अपनी current study को stop करके नेक्स्ट करियर मूव के बारे में सोच लो, बट वी आर जस्ट ब्रिंगिंग आउट सम अनदर एस्पेक्ट इनटू द लाइफ कि अगर नहीं होता है, इफ़ एट ऑल यू थिंक अबाउट कमिंग आउट ऑफ दैट प्रिपरेशन मोड और कुछ और करियर में जाना चाहते हो, तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू, एंड दीज आर द स्टोरीज एज वेल कि देर इज नथिंग वी आर स्पीकिंग ऑन just made up stories or something like that, but we are coming with some real time example. So yeah, that's what. Absolutely, I think I mean, there were civil services, IS, IPS, all the different officers and the different services that are there. They are the skeleton of the Indian administration. Without these guys, we really do not have any Indian administration. So these are the elite services of the country, and there are no two ways about it. But the way we've glamorized this profession too much that people are not able to think beyond it, that's not correct. Every profession, every service, it is important, and कोई किसी हर स्टेक होल्डर, जैसे फैमिली का हर मेंबर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही देश का हर काम इंपॉर्टेंट है. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी सीन विद इक्वल रिस्पेक्ट. एंड बस एग्ज़ाम के एवोल्यूशन में इस समय बहुत ज़रूरत है. जिस तरीके से हम वी आर सेलेक्टिंग दीज एलीट पीपल, देयर नीड्स टू बी मोर एवोल्यूशन एंड मोर ट्रांसपेरेंसी इन द एग्ज़ाम. इट्स अ वेरी ओल्ड decade old exam pattern that has not changed, and we are continuously repeating that. I think that needs to change, but to all the people who are sort of preparing for this exam right now, it's a very difficult exam, and all the very best to you. And those who are thinking of moving out and actually doing something, again, that's a very bold choice to make. So all the very best to you too. There are really good opportunities lying ahead for you guys as well, and I'm really hopeful that you will get what you want. Out and speaking openly about your choices and all, because don't think it that way कि people will judge you कि अच्छा ये तो सिविल सर्विस करने निकला था, IAS बनने निकली थी या कुछ भी था, and nobody will judge you, because at the end it's your career, it's your decision. So you have to take charge of that thing, and I hope through this some this kind of initiative or this kind of healthy discussion way, we are able to give 1% into that thing. So thanks a lot, Gunjan, for joining us today and sharing your journey, and I'm sure people will
take a immensely good content out of this thing and good takeaway from this. Thanks a lot. Thanks a lot, Eden. Thank you for inviting me. Lovely talking. Yes.